टेक नोट। तो मैं भूषण और लक्की जी से रिक्वेस्ट करूंगा, क्या थोड़ा आगे पीछे करना है या यहाँ से मैं पढ़ाई शुरू करूँ? सो उसके पीछे वाला जो पैराग्राफ है, बट एज टाइम पास्ट, ओके, वहां से वहां शुरू से शुरू करो, कर। बिकॉज ये पैराग्राफ का कॉन्टेक्स्ट है वो पिछले पैराग्राफ से है। सो पेज ओके, 121 का जो बट एज टाइम पास से शुरुआत करो। ओके। But as time passed, we found that with the help of A's 12 steps, we could lose those fears, no matter what our material prospects were. We could cheerfully perform humble labor without worrying about tomorrow. If our circumstances happened to be good, we no longer dreaded a change for those worse, for we had learned that these troubles could be turned into great values. It did not matter too much what our material condition was, but it did matter what our spiritual condition was. Money gradually became our servant and not our master. It became a means of exchanging love and service with those about us. When, with God's help, we calmly accepted our lot, then we found we could live at peace with ourselves and show others who still suffered the same fears that they could get over them too. We found that freedom from fear was more important than freedom from want. Let's here take note of our improved outlook upon the problems of personal importance, power, ambition, and leadership. These were reefs upon which many of us came to shipwreck during our drinking careers. Problems of personal importance, power, ambition, and leadership. Okay. Practically every boy in United States dreams of becoming our president. He wants to be his country's number one man. As he gets older and sees the impossibility of this, he can smile good naturedly at his childhood dream. In later life, he finds that real happiness is not to be found in just trying to be a number one man or even a first rater in the heartbreaking struggle for money, romance, or self importance. He learns that he can be content as long as he plays well whatever cards life deals him. He is still ambitious, but not absurdly so because he can now see and accept actual reality. He is willing to stay right size. But not so with alcoholics. When AA was quite young, a number of eminent psychologists and doctors made an exhaustive study of a good sized group of so called problem drinkers. The doctors weren't trying to find how different we were from one another. They sought to find whatever personality traits, if any, this group of alcoholics had in common. They finally came up with a conclusion that shocked the A members of that time. These distinguished men had the nerve to say that most of the alcoholics under investigation were still childish, emotionally sensitive, and grandiose. Over to you, Lucky ji. ओके, थैंक यू चंदू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। Hi, परमेश्वर की Lucky. कृपा, एक का मार्गदर्शन। आज के दिन शराब के पहले वोट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप का मेंबर हूँ, स्पॉन्सर लिया हुआ है और एक ही प्रोग्राम पे चलने की कोशिश करता हूँ। पिछला पैरा जो चंदू ने पढ़ा, बट एज टाइम पास, उसका सारांश ये बनता है कि समय बीतने के साथ हमने पाया कि ए के 12 स्टेप्स की मदद से हम वो भय खो सकते थे, चाहे हमारी भौतिक परिस्थितियां कैसी भी हो। हम खुश मन से साधारण और विनम्र कार्य कर सकते थे, बिना आने वाले कल की चिंता किए। अगर हमारी परिस्थितियां अच्छी भी हों, तो भी हमें उनको बिगाड़ने का डर नहीं रहता था, क्योंकि हमने सीख लिया था कि ऐसी परेशानियां भी हमारे लिए एक अनुभव में बदल सकती हैं। हमारी भौतिक स्थिति क्या है, यह अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा, लेकिन हमारी आध्यात्मिक स्थिति क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया।
धीरे धीरे पैसा हमारा नौकर बन गया, मालिक नहीं। वह प्रेम और सेवा को अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाने का एक साधन बन गया। जब हम ईश्वर की मदद से अपनी परिस्थितियों को शांत मन से स्वीकारने लगे, तब हमने पाया कि हम स्वयं के साथ शांति से जी सकते हैं और उन लोगों को भी दिखा सकते हैं जो अभी भी उस भय से पीड़ित थे कि वे भी उससे उभर सकते हैं। हमने पाया कि भय से मुक्ति जरूरतों की पूर्ति की स्वतंत्रता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अगले पैरा में जब हम कहते हैं कि बट लेट्स टेक हियर नोट, यहाँ व्यक्तिगत महत्व, शक्ति, महत्वाकांक्षा और नेतृत्व से जुड़े समस्याओं के प्रति अपने बदले हुए दृष्टिकोण पर ध्यान दे। अपनी शराबखोरी के दौरान हम में से कई लोग इन्हीं चट्टानों से टकराकर तकलीफ में आते थे। अमेरिका में लगभग हर लड़का राष्ट्रपति बनने का सपना देखता है। वो अपने देश का नंबर 1 व्यक्ति बनना चाहता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसे यह सपना असंभव लगता है। वह अपनी बचपन की इच्छा पर सहजता से हंस सकता है। आगे चलकर वह यह सीखता है कि असली खुशी केवल नंबर 1 बनने की कोशिश में या पैसे, रोमांस या आत्म महत्व के लिए होने वाली टूटन भरी जद्दोजहद में नहीं मिलती। वो सीखता है कि जीवन जो भी पत्ते उसे दे, वो उन्हें अच्छे से खेले तो संतुष्ट रह सकता है। वह महत्वाकांक्षी तो रहता है, लेकिन मूर्खतापूर्ण ढंग से नहीं, क्योंकि जब वो वास्तविकता को देख और स्वीकार कर सकता है, वो अपनी सही सीमा में रहना सीख जाता है। लेकिन शराबियों के साथ ऐसा नहीं होता। जब ये नया था, तब कई प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों और डॉक्टर ने एक तथाकथित समस्याग्रस्त शराबियों के एक बड़े समूह पर विस्तृत अध्ययन किया। डॉक्टर ये जानना चाहते थे कि हम एक दूसरे से कैसे अलग नहीं हैं। वो ये पता लगाना चाहते थे कि अगर कोई सामान्य व्यक्तिगत लक्षण है तो वो क्या है। आखिरकार उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला जिसने उस समय के ये सदस्यों को झकझोर दिया। इन प्रतिष्ठित लोगों ने कहा कि अध्ययन किए गए अधिकतर शराबी अभी भी चाइल्डिश, भावनात्मक रूप से संवेदनशील और ग्रैंडियोस थे। इन शराबियों ने उस निर्णय का बहुत विरोध किया। ये मानने को तैयार नहीं थे कि हमारे वयस्क सपने अक्सर सचमुच बच्चे जैसे थे और जीवन ने जो कठोर परिस्थितियां हमें दी थी, उनके चलते हमें अपनी संवेदनशीलता बिल्कुल स्वाभाविक लगती थी। जहां तक हमारे ग्रैंडियोसिटी का प्रश्न था, हम जोर देकर कहते थे वह तो जीवन की लड़ाई जीतने का एक और उच्च और वैध महत्वाकांक्षा थी। यस, दैट्स इट पुरुषोत्तम। नमस्ते भाइयों, मेरा नाम विशन है, मैं एक शराबी हूँ और अच्छा लग रहा है दोस्तों। खास करके ये जो शुक्रवार की शाम की जो ये मीटिंग होती है, उस बहाने दोबारा एक दफा पढ़ना होता है, उस विचार के ऊपर चिंतन होता है, मनन होता है, तो लिटरेचर से भी एक कनेक्ट बना रहता है। और अभी अपनी बदलती हुई जो जिंदगी है, सोब्राइटी में जो अलग अलग जो अपॉर्चुनिटीज आती है, चैलेंजेस आती है, उनको सामना करते करते और भी उस लिटरेचर की गहराई का एहसास होता है दोस्तों। अभी हाल ही में कुछ समय पहले मुझे एक बिजनेस नेटवर्किंग के मीटिंग में मार्गदर्शन करने के लिए बुलाया था। वहाँ ढेर सारे नए जो लोग होम बिजनेस या न्यू बिजनेस करने वाले लोग रहते हैं, तो ऐसे लोगों को मार्गदर्शन करने हेतु मुझे बुलाया गया था। तो मैं वहां पर गया और अपना तो अभी ये वे ऑफ थिंकिंग ही हो गया है, वे ऑफ बीइंग ही हो गया है कि मैंने उनको बोला कि मैं यहाँ पर कोई आपका एक्सपर्ट करके आया नहीं हूँ या आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, लेकिन मैंने अपना बिजनेस करते हुए क्या क्या गलतियां की
वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप अगर चाहो तो वो गलतियां नहीं करो। और बड़ी नम्रता पूर्वक मैंने शुरुआत से लेकर जो भी गलतियां की है, और वो गलतियों में से कैसे फ्रस्ट्रेट हुआ, कैसे डिप्रेस हुआ, कैसे झगड़ा किया, कैसे उसमें से उभर कर बाहर निकल पाया, वो एक मैंने उनके सामने नैरेट किया। अब बाहर की दुनिया में लोग जब भी ऐसे बुलाते हैं तो बड़ा मतलब जो जो बात करने वाला रहता है वो एक गुरु या एक सिखाने वाले के तौर से बात करते हैं। और मैंने जब इस प्रकार से बात किया तो वो इतना उन लोगों को पसंद आया, उतना उनको मतलब ऐसे उनको हर एक को आके मेरे साथ में बात करना था, अपने प्रॉब्लम शेयर करने थे, और वो मैं क्या करूं टाइप के सवाल उनके ढेर सारे थे। और मुझे रियलाइज हो रहा था कि ये मैं नहीं हूं। मैं अगर नॉर्मली अगर मुझे कोई जो डीप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर हुआ करता था, और ऐसे अगर कोई पब्लिक अटेंशन अगर मिले तो मैं तो ऐसे मतलब मेरा तो जिंदगी मतलब शाम बन जाती थी। लेकिन अभी मैं एग्जैक्टली समझ पा रहा था कि जो मेरा दर्द था, मैंने जो शुरुआत के दिनों में जो भी बिताई थी, वो सिचुएशंस में आगे आने वाले लोग जब देख रहे थे तो मेरा ऑटोमेटिकली एक कहते ना कि एक मेरा दिल जो है वो वहां पर उन तक पहुंच रहा था। अब धीरे 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 जब हम लोग अपने आप की तरफ ऑब्जेक्टिवली देखने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हमने क्या क्या करेक्टिव मेजर्स लिए हैं ये हमें दिखने लगता है। और मेरे अंदर के जो खोखले जो सपने या जो जो मैं अपने लिए अनरियलिस्टिक गोल्स और एम्बिशंस जो सेट करता हूं, वो सब उनका खोखलापन नजर आने लगता है। मुझे याद है बिजनेस नया नया चालू किया था, शायद 2 साल 3 साल हुए थे, और एक सीनियर मेंबर आए थे मेरे बिजनेस के यहाँ पर, और मुझे पूछ रहे थे कि सो कुशन तुम्हारा एम्बिशन क्या है, बिजनेस चालू किया है तुमने, तुम्हारा एम्बिशन क्या है। और मैं बड़ा छाती तान के उसको बोला कि मुझे भारत का नंबर 1 ब्रांड ऑफ ज्वेलरी बनाना है। तो बोलता है तो उससे क्या होगा। तो मैं सडनली चुप हो गया, मतलब बोलने के लिए तो मैंने जवाब दे दिया था, लेकिन उससे क्या होगा इस बात का मैंने सोचा नहीं था। क्योंकि दुनिया में सब लोग बोलते हैं कि नंबर 1 बनना यानी तुम जीत गए, तुम विनर हो, यही तुम्हारे सक्सेस की मान्यता है। तो मैंने ठोक दिया कि मैं नंबर 1 ब्रांड बनना चाहता हूं। लेकिन उसने बोला कि उससे क्या होगा। उसने बोला तुमने कभी देखा है जो जो लोग बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो पूरी तरह से बिजनेस में व्यस्त हो जाते हैं, उनके बेटे चरसी बन जाते हैं, उनकी बीवियां दूसरों के साथ में भाग जाती है, क्योंकि इनके जीवन में बिजनेस के अलावा दूसरा कुछ बचता ही नहीं है। वो पूरा दिन रात सुबह शाम 24 घंटा अगर बिजनेस का ही सोचेंगे तो उनके जिंदगी के आदमी के जीवन के जो बाकी डायमेंशंस है वो सब अधूरे रह जाते हैं, और लोग उनसे कंटाल के दूर हो जाते हैं उनसे। और भले तू बुढ़ा हो जाएगा, करोड़ों रुपए तेरे पास में होगा, लेकिन तेरे बाजू में बैठा हुआ कोई नहीं रहेगा। और तू अकेला बैठ के बेड के ऊपर जब मर रहा होगा तब तू सोचता होगा कि मैंने ये सबसे बड़ी नंबर 1 कंपनी बना के मैंने क्या पा लिया। ना मेरे साथ में कोई बैठा हुआ है, ना मेरे ऊपर कोई प्यार करने वाला है, ना मेरे मेरे लिए कोई बुरा मानने वाला है। तो ऐसे बुढ़ापे का, ऐसे आदमी का क्या मतलब। और तभी उसने मुझे ये जो 12th स्टेप है कि व्हाट इज ट्रू एम्बिशन, यानी एक उपयुक्त जीवन जीना, एक प्यार भरा, सेवा भरा, लोगों के लिए प्रेरित ऐसा जीवन जीना, और सब में से एक बनकर रहना, एक समूह में से एक बनकर रहना, अपने ही अस्तित्व
अपने अस्तित्व के लिए जो एक परमानेंट जो एक झगड़ा है, वो झगड़ा न करते हुए ये जो चाइल्डिश अमेच्योरिश जो सपने हैं, वो सपनों को बाजू में रखकर एक मैच्योर, एक इंट्रोस्पेक्टिव, खुद के बारे में विचार करने वाला कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे सामने जो भी ये उद्देश्य है, ये उसमें मेरा स्वार्थ है कि मैं किस हेतु कर रहा हूँ। ये जब भी सोचने लगते हैं तो ये जो 12 कदमों का ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये पर्सपेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिविटी, ये साक्षी भाव हमें देता है। और यहाँ पर बिल डब्ल्यू जो एक्सपेरिमेंट की जो बात कर रहे हैं, वो जो 1940s में वो जो साइकियाट्रिस्ट लोगों ने जो बिल डब्ल्यू के साथ में जो दोस्ती की थी, और उन्होंने जब भी ये सैंपल किया था, और उन्होंने जब भी डिक्लेयर किया था कि बेसिकली हम लोग सभी, आज भी देखो, हम लोग जब भी चार शराबी जब भी इकट्ठा मिलते हैं तो ऐसी बचकुंडी बातें करते हैं, कुछ ऐसे छोटे मोटे जोक सुनाते हैं, अब हम लोग ही हंसते हैं, हम लोग ही कुछ झगड़े भी करते हैं, बूढ़े भी हो जाएंगे तो भी एक दूसरे के ऊपर मारामारी करने के लिए भी जाते हैं। मतलब हमारा उम्र क्या है, हमारी समझ क्या है, हमारी अक्ल क्या है, और हमारा माइंडसेट क्या है, इन दोनों में कई बार विसंगति देखी जाती है। तो ये बहुत पुरानी बात है कि बिल डब्ल्यू को तभी पता चला था कि अभी लकी जो बता रहा था कि जो फर्दर एक्सप्लेनेशन कि हमने हमारे इस प्रकार के बिहेवियर को क्यों सही समझा, उसका एक्सप्लेनेशन आगे वाले पैराग्राफ्स में है, तो वो भी देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सो ओवर टू यू चंदू। Thank you, Bhushan. How we alcoholics did resent that verdict. We would not believe that our adult dreams were often truly childish. And considering the rough deal life had given us, we felt it perfectly natural that we were sensitive. As to our grandiose behavior, we insisted that we had been possessed of nothing but a high and legitimate ambition to win the battle of life. In the years since, however, most of us have come to agree with those doctors. We have had a much keener look at ourselves and those about us. We have seen that we were prodded by unreasonable fears or anxiety into making a life business of winning fame, money, and what we thought was leadership. So false pride became the reverse side of that ruinous coin marked fear. We simply had to be number one people to cover up our deep lying inferiorities. In fitful successes, we boasted of greater feats to be done. In defeat, we were bitter. If we didn't have much of any worldly success, we became depressed and cowed. Then people said we were of the inferior type. But now we see ourselves as chips of the same old block. At heart, we had all been abnormally fearful. It mattered little whether we had sat on the shore of life drinking ourselves into forgetfulness or had plunged in recklessly and willfully beyond our depth and ability. The result was the same. All of us had nearly perished in a sea of alcohol. But today, in well-natured AAs, these distorted drives have been resorted to something like their true purpose and direction. We no longer strive to dominate or rule those about us in order to gain self-importance. We no longer seek fame and honor in order to be praised. When by devoted service to family, friends, business, or community, we attract widespread affection and are sometimes singled out for posts of greater responsibility and trust. We try to be humbly grateful and exert ourselves with more in a spirit of love and service. True leadership, we find, depends upon able example and not upon vain displays of power or glory. Shall I continue? Only दो पैराग्राफ बचे हैं लास्ट के.
कर ले पूरे। Still more wonderful is the feeling that we do not have to be specifically distinguished among our fellows in order to be useful and profoundly happy. Not many of us can be leaders of prominence, nor do we wish to be. Service gladly rendered, obligations squarely met, troubles well accepted or solved with God's help, the knowledge that at home or in the world outside we are partners in a common effort, and the well understood fact that in God's sight all human beings are important. The proof that love freely given surely brings a full certainty that we are no longer isolated and alone in self constructed prisons, the surety that we need no longer be square pegs in round holes, but can fit and belong in God's scheme of things. These are the permanent and legitimate satisfaction of right living, for which no amount of pomp and circumstance, no heap of material possessions could possibly substitute. True ambition is not what we thought it was. True ambition is the deep desire to live usefully and walk humbly under the grace of God. These little studies of 8, 12 steps now come to a close. We have been considering so many problems पहला that तेरे पास it may हुई ना? appear. नहीं 5 मम्मी ने अच्छे देखे कृपया म्यूट करें प्लीज. We have been considering so many problems that it may appear that AA consists mainly of racking dilemmas and troubleshooting. To a certain extent, that is true. We have been talking about problems because we are problem people who have found a way up and out, and who wish to share our knowledge of that way with all those who can use it. For it is only by accepting and solving our problems that we begin to get right with ourselves and with the world about us, and with Him who presides over us all. Understanding is the key to right principles and attitudes, and the right action is the key to good living. Therefore, the joy of good living is the theme of AA's 12 step. With each passing day of our lives, may every one of us sense more deeply the inner meaning of AA's simple prayer. God, grant us the serenity to accept the things we cannot change, courage to change the things we can, and wisdom to know the difference. Over to you, Lucky ji. चंदू, तो अब हम ये आखिरी पड़ाव पे आते हैं। जैसे पूषण कह रहा था, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने जब ये विश्लेषण किया, अध्ययन किया, तब पता चला कि बचकानी हरकतें करने वाले, बहुत ही भावनिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति और ऐसे ग्रैंडियोस, ऐसे दिखावा करने वाले लोग साबित हुए। हमारे में ये छटाएं दिखी उनको। तो जब ये दिखा तो उस वक्त के शराबियों ने इस फैसले का बड़ा विरोध किया। वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि हम अभी इतनी उम्र के हो गए हैं, हमारे वयस्क सपने वास्तव में अक्सर बचकाने थे, और जीवन ने हमें जो कठोर परिस्थितियां दी थी, उन्हें देखते हुए हम अपनी संवेदनशीलता को बिल्कुल स्वाभाविक समझते थे। यानी कि हमने ये जस्टिफाई किया कि हम इसके लिए संवेदनशील हो गए हैं क्योंकि जिंदगी में इतनी कठोर परिस्थितियां आई थी, तो कैसे हम सेंसिटिव ना हो उनको। खैर, जहां तक हमारी ग्रैंडियस व्यवहार का प्रश्न था, हम जो जोर देकर कहते थे वो तो जीवन की लड़ाई जीतने की एक ऊंची और वैध महत्वाकांक्षा थी। हमने उसको भी जस्टिफाई किया। लेकिन इसके बाद के वर्षों में हम में से अधिकांश ने उन डॉक्टरों की बात को सही माना। हमने खुद को और अपने आसपास के लोगों को गहराई से देखना शुरू किया। हमने पाया कि अव्यवहारिक भय और चिंताओं ने हमें जीवन भर प्रसिद्धि, धन और जिसे हम नेतृत्व समझते थे, उसे पाने की अर्थक कोशिश में धकेल दिया। इस प्रकार झूठा अभिमान,
भय नामक विनाशकारी सिक्के का दूसरा पहलू बन गया। अपनी गहरी हीनता को ढकने के लिए हमें नंबर 1 बनने की जरूरत महसूस होती थी। कभी कभी मिली सफलता में हम और बड़ी उपलब्धियों की डींग मारते और असफलता में कड़वाहट से भर जाते। यदि दुनिया में हमें कोई खास सफलता नहीं मिलती तो हम दबे से सहमे और निराश हो जाते। तब लोग कहते कि हम हीन प्रकार के व्यक्ति हैं। लेकिन अब हम देखते कि हम भी किसी मानव स्वभाव के हिस्से हैं। अंदर से हम सभी असामान्य रूप से भयभीत थे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम जीवन के किनारे बैठकर शराब पीकर सब कुछ भूलने की कोशिश करते थे या फिर लापरवाही और जिद से अपनी क्षमता से कहीं आगे तक डूब जाते थे। नतीजा एक ही था, हम सब लगभग शराब के समुद्र में डूबकर समाप्त हो चुके थे। आगे लिखता है, परंतु आज परिपक्व ए सदस्यों में ये विकृत प्रवृत्तियां अपने सही उद्देश्य और दिशा की ओर लौट आई हैं। बिल कहता है कि अभी हम सुधर रहे हैं। हम अब अपने आसपास के लोगों पर हावी होना या उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते ताकि खुद को महत्वपूर्ण दिखा सके। हम अब शोहरत या सम्मान इसलिए नहीं चाहते कि लोग हमारी प्रशंसा करें। जब परिवार, मित्रों, व्यवसाय या समाज के प्रति समर्पित सेवा के कारण हमें प्रेम और सम्मान मिलता है और कभी हमें अधिक जिम्मेदारी के पद भी दिए जाते हैं, तो हम विनम्र होकर कृतज्ञ महसूस करते हैं और प्रेम और सेवा की भावना से और अधिक प्रयास करते हैं। हमने पाया कि सच्चा नेतृत्व, ट्रू लीडरशिप, शक्ति या महिमा के दिखावे से नहीं बल्कि योग्य उदाहरण से उत्पन्न होती है। और भी अद्भुत बात यह है कि हमारे लिए अब यह अत्यंत संतोषदायक है कि उपयोगी और गहराई से सुखी होने के लिए हमें दूसरों से विशेष या अलग दिखने की आवश्यकता नहीं है। हम में से बहुत कम लोग प्रमुख नेता बन सकते हैं और अब हम ऐसा बनना चाहते भी नहीं हैं। सच्चा संतोष तब आता है सेवा जिसे हम खुशी से करते हैं, जिम्मेदारियां जिनको हम ईमानदारी से निभाते हैं, परेशानियों को ईश्वर की मदद से स्वीकारने या हल करते हैं, यह जानकर कि घर में या दुनिया में हम सब एक समान प्रयास के साझेदार हैं, यह समझकर कि ईश्वर की नजर में सभी मनुष्य महत्वपूर्ण हैं, यह साबित होने से कि प्रेम जब खुलकर दिया जाए तो भरपूर लौट कर आता है, यह महसूस करने से कि अब हम अकेले और अलग थलग नहीं हैं, यह जानने से कि अब हम गलत जगह लगे हुए खूंटे नहीं है। वो राउंड होल स्क्वायर पेग की बात करता है बिल यहाँ पे, बल्कि ईश्वर की योजना में ठीक से फिट बैठते हैं। ये है सही जीवन के स्थायी और वैध आनंद, जिनकी जगह कोई भी दिखावा, कोई भी सम्मान या ढेर सारा धन नहीं ले सकता। बिल ने बाखूबी से ये जो सच्चा संतोष आता है, इसके जो पॉइंट्स यहाँ कवर किए हैं, आज मुझे भी शेयर करते करते अनुभव हो रहा है कि ये हम अलग नहीं है और यही है जीवन के स्थायी, परमानेंट और वैध आनंद, जिनकी जगह कोई भी दिखावा, कोई भी सम्मान या ढेर सारा धन नहीं ले सकता। सच्ची महत्वाकांक्षा वह नहीं है जिसे हम पहले समझते थे। सच्ची महत्वाकांक्षा है उपयोगी जीवन जीने की गहरी इच्छा और ईश्वर की कृपा से आधीन विनम्रता से चलना। अब इसके लास्ट के पैरा में बिल 12 कदमों का सार हमारे सामने रखता है। एक इन छोटे छोटे अध्ययन अब पूर्ण होते हैं। हमने बहुत सी समस्याओं पर विचार किया है, जिससे लगता है कि ये केवल कठिनाइयों से निपटने का कार्यक्रम है। कुछ हद तक यह सही भी है,
क्योंकि हम समस्याग्रस्त लोग हैं जिन्होंने ऊपर उठने और बाहर निकलने का रास्ता पाया है, और अब हम वह रास्ता उन सब से साझा करना चाहते हैं जो इसका उपयोग कर सकते हैं। केवल समस्याओं को स्वीकारने और हल करने से ही हम स्वयं के साथ, दुनिया के साथ और उस ईश्वर के साथ जो हम सब पर शासन करता है ठीक हो सकते हैं। समझ सही सिद्धांतों और भावों की कुंजी है, और सही कार्य अच्छे जीवन की कुंजी। इसलिए अच्छे जीवन का आनंद ही 12वें कदम का विषय है। और लास्ट में एक ही अपनी प्रार्थना, गॉड ग्रांट अस द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स we cannot change, courage to change the things we can, and wisdom to know the difference. Thank you. Over to you, Pushan. थैंक यू लकी। इनफैक्ट मैं जानता हूं कि इसमें लकी के पास भी शेयर करने जैसे कई अनुभव है। बिल्डिंग का सेक्रेटरी या चेयरमैन से चुनने जाने से लेकर उसके गुरुद्वारे का ट्रस्टी बनने तक का जो विश्वास संपादन उसने किया हुआ है, शायद वो शेयर करना चाहेगा बाद में। बट ये अनुभूति जरूर होती है कि जब भी हम हमारा इम्पोर्टेंस समाज और इतर बाकी लोगों के ऊपर उसका जो इम्पैक्ट है वो नहीं, मतलब वी आर नॉट इंसिस्टिंग फॉर सेल्फ ग्लोरी कि मेरे तरफ देखो मेरे तरफ देखो। वो पहले की जो एक प्यास थी, एक न बुझने वाली प्यास थी प्रतिष्ठा के लिए, एक हमेशा से ही संशयित नजर से मैं दूसरों की तरफ देख रहा था कि ये कंपटीशन है क्या मेरा, ये मेरे से आगे निकल जाएगा क्या। और फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि शायद उसको उस रिकॉग्निशन की ज्यादा जरूरत है और मैंने उसको एनकरेज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ मैंने उसके ऊपर हावी होने से। तो वो जो अंदर की जो प्यास है ना, वो प्यास धीरे 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 ईश्वर की कृपा से बुझते जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी एम्बिशन निकल जाती है, इसका मतलब ये है कि मेरे एम्बिशन का स्वरूप चेंज हो जाता है। मेरे एम्बिशंस मटेरियल एम्बिशंस नहीं, अब मुझे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा धंधा, बड़ा दिखावा, ये एम्बिशंस न रहते हुए मेरी एम्बिशन स्पिरिचुअल होने लगती है कि बाकी लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या मुझे जो भी कुछ मिला हुआ है इससे मैं अपने लिए नहीं बल्कि बाकी लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। ऑनेस्टली धीरे 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 तुम्हारी हर चीज के ऊपर से तुम्हारा देखने का नजरिया बदलने लगता है। जब समाज में कई सारे लोग, मतलब इनफैक्ट आप अगर कोई भी सोशल नेटवर्क में जाते हो जहां पर ढेर सारे लोग आते हैं, तो उनके बीच में बहुत सारा पॉलिटिक्स, उनके बीच में ऊंच नीच, इसको नीचा दिखाओ, उसके बारे में स्लैंडर करो, उसके बारे में गॉसिप करो, ये सभी जब चलते रहता है तो अपने को सबकॉन्शियसली रियलाइज हो जाता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है। अपने को अंदर से ही आवाज आ जाती है कि पूषण तू कर क्या रहा है, ये लोगों के बीच में तू कर क्या रहा है, दिस इज नॉट व्हाट यू आर, दिस इज नॉट व्हाट यू वांट टू बी। इन सब चीजों में से उभर के ही तो तू अलग हुआ है, तूने अपनी एक पहचान बनाई है, बाकी लोगों के लिए नहीं लेकिन अपने ही खुद की नजरों में तेरी एक नई पहचान बन चुकी है। और वो अपने नजर में जो मैं अपने आप को आज देखता हूँ, वो मैं उसको ऐसी छोटी घिनौनी हल्की कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज करते मैं देख नहीं पाता हूँ। ऑटोमेटिकली ऐसी जो ट्रबल सिचुएशंस है या जहां पर फ्रिक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट है, वहां से मैं अपने आप को दूर कर लेता हूं। या जहां पर ऐसी संभावना भी है कि यहाँ आगे जाकर शायद फ्रिक्शन होने वाली है, तो वहां से इंस्टिंक्टिवली, ऐसा भी नहीं कि मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है या आगे जाके फिर कमिट करके मिस्टेक करके फिर अभी नहीं 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 ये मेरा मार्ग नहीं है, ऐसा नहीं, इंस्टिंक्टिवली पता चल जाता है कि ये तुम्हारा मार्ग नहीं है, तुम्हारा मार्ग कुछ और है। और जब भी आपको इम्पोर्टेंस भी मिलने लगता है, मतलब मैंने कई बार ये देखा है कि थोड़ा पैसा आपको मिलने लगता है तो समाज वैसे ही आपको थोड़ी सी ज्यादा इज्जत देने लगता है।
लेकिन आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन तुम्हारे पैसे को इज्जत दे रहा है, कौन तुम्हारे कुर्सी को इज्जत दे रहा है, और कौन तुम्हारे व्यक्तित्व को इज्जत दे रहा है। और इनका जब भी फर्क महसूस होता है तो जो सिर्फ तुम्हारे कुर्सी को या पैसे को महत्व दे रहा है, उसको भी आप अपने व्यक्तित्व के जरिए, अपनी पर्सनालिटी के जरिए अपना दोस्त बना सकते हो। ये क्योंकि आप उसको देख सकते हो, जैसे आप खुद को देखने की क्रिया सीख चुके हो, वैसे आप औरों को भी देखने की क्रिया आप समझ जाते हो, सीख जाते हो। झट से सामने वाला चाहता क्या है, सामने वाले के पॉइंट्स क्या है, वो आपको दिखाई देते हैं। जब भी आपको अपने खुद के इमोशंस के ऊपर कंट्रोल प्राप्त होने लगता है, तो जब भी दूसरा इमोशनली डिस्टर्ब है, तो वो क्विकली आपको भी सेंस हो जाता है कि ये व्यक्ति की भूख कुछ और है और वो बता कुछ और रहा है। और अगर आप उसको सहानुभूति दो, उसकी मदद करना चाहो, तो इमीडिएटली आप उसके दोस्त बन सकते हो। अभी परसों का ही एक एग्जाम्पल है। हमारे यहाँ का एक बड़ा फेमस डॉक्टर, उसने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल डाला, बहुत बड़ा कर्जा लेकर, बहुत सारे लोगों को पार्टनर लेकर बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल डाला। और अनफॉर्चुनेटली वो सब फाइनेंशियली वायबल नहीं हुआ और वो वर्चुअली बैंकरप्ट हो गया। बहुत मतलब बहुत ही बड़ी रकम, कई सारी बैंकों की, कई सारे इन्वेस्टर्स की उसमें फंस गई और ये बैंकरप्ट हो गया। अभी वो बैंकरप्सी की केस वगैरह उसके ऊपर चल रही है तो बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी डॉक्टर है। पूरा मतलब जो चंद नामों को इज्जत से लिया जाता था कुछ साल पहले, आज वही लोग उसके इस हरकत की वजह से उसको गाली गलौज कर रहे हैं। और ये पूरी तरह से मतलब ऐसा उसकी पर्सनालिटी, वो जो जब ये एक आदमी जब भी बैंकरप्ट होता है तो वो पूरा जो डिफाई करता है ना सबको, जाओ जो करना है वो कर लो वगैरह वगैरह, इस टाइप का, वो भी एकदम ऐसा डिफाइंट, एग्रेसिव, फाइटर, 50 केसेस कोर्ट में है उसके ऊपर चल रही, ये इस प्रकार की ये पर्सनैलिटी। और परसों हम लोग एक शादी में मिले और वो मेरे बगल में आके बैठा था और मैंने उसको जस्ट कैजुअली, जैसा हम लोग किसी को मिलते हैं तो पूछते हैं कि कैसा है भाई, तो मैंने उसको बोला कैसा है भाई। तो प्रोबेबली मेरी आवाज, या प्रोबेबली द वे आई आस्क्ड, या प्रोबेबली उसको मतलब पहले से ही वो भर आया था और उसको बोलना था बहुत सारा चीज। और उसने मेरी आंखों में देखा और उसने पूरी उसकी जो स्टोरी है, उसका जो भी अंदर से जो सफरिंग है, उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी जो परेशानी है, उसका जब वो पूरा खुल खुल के उसको वैसा मतलब रुकने को नहीं हो रहा था, इतना बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है। और मैं समझ रहा था कि ये कितनी पीड़ा से भरा हुआ है। अपने यहाँ पर जब भी पहली दफा जब भी फिफ्थ स्टेप लेने के लिए जब भी नया आदमी बैठता है और कैसे वो बोले जाता है, उसको इतना सारा बॉटलिंग अप अंदर से रहता है कि मेरा जिंदगी का मैंने पूरा कैसा काशी करके लिया है, ये जो बताने में जो एक रिलीफ होता है, आई कुड सी दैट रिलीफ। वो उसके आंखों में, वो मैं देख रहा था कि वो बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है और धीरे 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 थक गया, बोलते बोलते वो ही थक गया, सांस अटक गई, पानी पिया और बोलता है मैं पिछले 10 साल में मैं किसी को बोला नहीं, मैं तेरे साथ क्यों बोला। एंड आई सेड मैं पिछले 10 साल से रुका हुआ हूं कि तू मेरे से बात करेगा, लेकिन आज तूने बात किया, थैंक यू फॉर योर कॉन्फिडेंस एंड आई फुल्ली अंडरस्टैंड। मुझे समझ में आता है कि तू कितनी तकलीफ में से, कितने दर्द में से गया होगा, ये मैं समझ सकता हूँ। बोला मैं तेरी तेरी परिस्थिति को मैं नहीं समझ सकता हूँ, लेकिन तेरी मन की अवस्था को समझ सकता हूँ। और चिंता मत कर, अगर ऊपर वाले ने इतना करेज दिया है तेरे को इतने सारे मुश्किलों को, तो वो तेरे को बाहर निकलने का मार्ग भी तेरे को देगा। चिंता मत कर, आ जाएगा बाहर, हौसला रख, हिम्मत रख। अब ये मेरे में नहीं था दोस्तों, ये ना मेरे में इतना विजडम है, ना मेरे में इतना पेशेंस है, ना मेरे में इतना सुकून है, ना मेरे में इतना तजुर्बा है। लेकिन वो समय पर
मैं उसके लिए वो चीज बन सका जो उसे जरूरत थी। और वो टाइम पे मैं ये नहीं सोच रहा था कि अरे इससे बात करके मेरा क्या फायदा होगा, या ये तो इसने तो साले इतने लोगों को फंसाया है, कल ये मेरे को पैसा मांगेगा, मेरे को भी फंसाएगा। मेरे बारे में कोई ख्याल ही नहीं आ रहा था कि ये मेरा लाभ लेगा या मेरे को क्या फायदा। आई वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ माई प्रेजेंस ओवर देयर। मैं खाली उसको एनकरेज कर रहा था ताकि वो बोल सके। अब ये जो गिफ्ट है ना, ये गिफ्ट शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। जब भी मैं किसी अभी हम लोग एक जगह गए थे, भुवनेश्वर में गए थे। वहां से जो जगन्नाथपुरी मंदिर में 15 जनों का बस का ये हो गया। अनफॉर्चुनेटली पहले रात को मैंने कुछ खाया था, मटन फटन कुछ खाया था, मेरा पेट बिगड़ गया और मैं वो नहीं जा सका उनके साथ में। मैं रुक गया पीछे होटल में। सब लोग अरे इतना दूर आया है और तू इतना पवित्र स्थल है, तू दर्शन नहीं करेगा, तेरा रह जाएगा। अब मैं जानता था कि वहां पर उधर 1 लाख लोग रहेंगे और मेरा पेट का हालत गंभीर है। अगर मेरे को कहीं वॉशरूम जाना पड़ेगा, मैं कहाँ से करूंगा ये सब। बोलना सब ठीक है, तो मैं मना कर दिया। और मैंने उनको इतना ही बोला कि मैं यहाँ बैठकर जगन्नाथ जी की मन में पूजा करूंगा और उनकी प्रार्थना करूंगा। आप वहां पर पहुंच जाइए और मेरा नमस्कार वहां पर पहुंचा दीजिए, आप जा ही रहे हो तो। और वो लोग निकल गए और मैं अकेला बैठा था होटल में, शांत बैठा था, मेरे रूम में बैठा था। फोना फोनी भी नहीं कर रहे थे और मैं शांति से बैठ के मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि कैसा है ये अगर कुछ साल पहले अगर मुझे कोई बोलता था, यानी मेरी मेरी सोबराइटी के पहले मुझे बोलता था तो मैं बोलता था कि ये सब बकवास है, ये सब अंधविश्वास है। फिर जब भी मेरी डरी हुई फेस थी और मैं किसी भी चीज को ईश्वर मानने को तैयार था, तो वो टाइम पे मुझे डर लगता था कि अरे यहाँ तक इतनी दूर तक आया और दर्शन नहीं कर पाए, इसका मतलब मेरे ऊपर ईश्वर का कोप होगा, मेरा दर्शन का लाभ चला गया। लेकिन आज मैं पूरी तटस्थता के साथ में जान सकता हूं कि वो ईश्वर मेरे दिल में है। वो जो भाव है, वो जो पवित्रता है, वो जो चीज मुझे वहां जाकर प्राप्त करनी है, वो मैं यहाँ पर अकेले बैठकर मेरे मन में उस चीज के बारे में थोड़ा मेडिटेट करके, थोड़ा सा फोकस करके, कंसंट्रेट करके, उसका पूरा जो पवित्रता है उसकी मैं पूरी तरह से अनुभूति ले सकता हूँ। और मैं बैठा रहा, मैं 2-3 घंटे में बैठा रहा। मैंने शांति से वो सुबह निकाली। एज लक वुड हैव इट, मेरा तकलीफ भी रुक गया, जो दवाई वगैरह ली थी वो हो गई। और वहां से फिर वो लोगों ने बोला कि अब हम लोग वहां से वो कोणार्क टेम्पल जा रहे हैं, तुम्हारी तबीयत कैसी, ठीक है? मैं बोला अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आ सकता हूँ। वहां से फिर मैं निकला, एक टैक्सी किया, वहां से कोणार्क टेम्पल चला गया, सबके साथ में मिला, सबके साथ में घूमा, सबके साथ में खाया। और मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ या एहसास भी नहीं हुआ कि आई हैव मिस्ड समथिंग, बिकॉज उसका जो स्पिरिचुअल रिवॉर्ड है वो मुझे एक बात समझ में आ चुकी है कि जो स्पिरिचुअल रिवॉर्ड लेने की क्षमता मेरे अंदर होनी चाहिए। बाहर तो स्पिरिचुअलिटी कंटिन्यूसली हो रही है, हर चीज में स्पिरिचुअलिटी है, बट एम आई ट्यून्ड टू रिसीव दैट स्पिरिचुअलिटी? अगर मैं अपने आप को ट्यून करूं तो कहीं पर भी, कितनी भी भीड़ में मैं बैठा हूं, मैं अपने आप को वो मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन बना सकता हूं। अगर मैं अकेला बैठा हूं तो अपनी कंडीशन बना सकता हूं, मैं नेचर में हूं तो मैं बना सकता हूं, या मैं ट्रेन में बैठा हूं तो मैं बना सकता हूं। इट्स नॉट आउटसाइड, इट्स इनसाइड मी। अगर मैं, इफ आई वांट टू कंडीशन माय माइंड, तो मैं वो जो अपनी जो प्रार्थना बताई है यहाँ पर, सेरेनिटी प्रेयर, मुझे बड़ी खूबसूरती के साथ में मेरा जो इनिशियल स्पॉन्सर था उसने बताया था। वो बोलता है कि हमेशा जो भी आपने देखा होगा ये क्लासरूम में कभी ये प्रार्थना लगी रहती है, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी।
तो हमेशा गॉड बड़े अक्षरों में लिखा रहता है। तो उसने मुझे पूछा क्यों लिखा रहता है, गॉड बड़े अक्षरों में लिखा रहता है और फिर ग्रांट में द सेरेनिटी छोटे अक्षरों में रखा रहता है, तो ये क्यों लिखा है बड़ा अक्षर में? तो मैं बोला पता नहीं, गॉड कैपिटल होता है, ये जी कैपिटल होता है, इसके लिए बड़े अक्षर हैं। नहीं बोले, इट्स नॉट लाइक दैट। तो इट इज द क्राई ऑफ अ रिपेंटेंट हार्ट। जब भी आप गॉड बोलते हो तो वो सेंटेंस हो जाता है, लेकिन गॉड ये जो पुकार है, जो एक आक्रोश है, एक पश्चातापी मन का जो आक्रोश से जब भी आप भगवान को पुकारते हो, तो ईश्वर या भगवान या गॉड ये जो आक्रोश है, वो आक्रोश के वजह से उसे बड़े अक्षरों में दिया जाता है। और फिर आप गिव मी द सेरेनिटी नहीं बोलते हो, आप ग्रांट मी द सेरेनिटी बोलते हो, क्योंकि गिव ये मेरे अधिकार का मामला है कि मेरा अधिकार बनता है मुझे दे दे मेरी सेरेनिटी, नहीं। लेकिन ग्रांट में यानी मैंने जो कुछ भी जिंदगी जी हुई है, तबाही मचाई है, इसके बाद में शायद मैं पात्रता भी नहीं हूं उस मन की शांतिता का, उस मन की वो स्थिरता का। लेकिन तू ग्रांट कर, तू मैं मेरा पापी में ही होगा मैं, लेकिन तू अगर चाहे तो तू मुझे दे सकता है, यू कैन ग्रांट इट मी। तो ग्रांट मी द सेरेनिटी और टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। जो चीजें मैं बदल नहीं सकता हूं उनको स्वीकारना है मुझे। और मैं बदल कुछ भी नहीं सकता हूं, मैं सिर्फ बदल अपने आप को सकता हूं। मैं मेरी बीवी को नहीं बदल सकता हूं, मेरे जॉब को नहीं बदल सकता, मेरे कुछ भी बाहर के समाज को नहीं बदल सकता हूं। जिन लोगों में मेरी आर्थिक स्थिति या जो भी है आज, मैं कुछ नहीं, मैं खाली अपने विचारों को, अपनी कोपिंग मैकेनिज्म को, अपने एक्सेप्टेंस को, अपने बिहेवियर को चेंज कर सकता हूं। तो ग्रांट मी द स्ट्रेंथ, मेरे को वो करेज चाहिए। ये सब बदलना है, ये आसान नहीं है, मेरे अंदर ही है, ये सब विकार भी मेरे अंदर है, और ये विकारों को बदलने के लिए मेरे को अपने खिलाफ जाना पड़ेगा, अपने मन के खिलाफ, अपनी वांट्स के खिलाफ जाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे ताकत जरूरी है, मुझे करेज जरूरी है। तो ये करेज तो मुझे ग्रांट कर, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो वहां पर सब जो दिखता है स्टेप 1 2 3 जो है, वो पूरा का पूरा वो ग्रांट में और वो करेज में वहां पर दिखता है। एंड वो जो प्रार्थना जो हमारी कहते हैं हम लोग, ग्रांट में द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कौन सी चीजें, जैसे वो अमेरिकन बच्चे का बात यहाँ पर बिल डब्ल्यू ने किया है कि हर बच्चा पहले छोटा रहता है तो प्रेसिडेंट बनना चाहता है, बड़ा होता है दुनियादारी देखता है और समझ जाता है कि भाई जो मेरे हिस्से की करियर है वही मैं ठीक से कर लूं काफी है, जो मेरे हिस्से की पूरे विश्व को परिवार बनाने के बदले जो मेरे हिस्से में परिवार आए उसी को मैं ठीक से संभालूं वही ठीक है। तो ये जो विजडम है कि कहां पर मुझे स्वीकार करना है और कौन सी चीजें मुझे बदलनी है, मेरे अंदर की बुराई को बदलनी है और ये जो अच्छाई है उसको स्वीकारना है। और ये जो विजडम है कि कहाँ मुझे डिसाइसिव रोल प्ले करना है और कहाँ मुझे लेड बैक रहना है, कहाँ मुझे यूजफुल और कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना है और कहाँ मुझे जो भी हो रहा है वो प्रसन्नता के साथ स्वीकार करना है, ये जानने का विजडम, वो ऑब्जेक्टिविटी, वो साक्षी भाव जो है, ये मैं ये प्रार्थना में मांग रहा हूं। सो द मॉरल, ये 12 कदमों का जो समराइज है, वो जो चंद लाइनों में अगर उसका क्या कहते हैं वो अर्क निकालना है, उसका जो कॉन्सेंट्रेटेड अगर ये निकालना है, तो ये सेरेनिटी प्रेयर के जरिए बिल डब्ल्यू हमें पेश करते। कई बार लोगों ने पूछा होगा अरे ये सेरेनिटी प्रेयर कौन से लिटरेचर में आता है? तो दोस्तों ये सेरेनिटी प्रेयर हमारे 12/12 के 12वें कदम के अंत में आता है। और ये जो है ये मेरा मंत्र है फॉर बैलेंस्ड लिविंग, आगे की जिंदगी। ये 12 कदम को एक्सेप्ट करने के बाद, अपने आप में परिवर्तन लाने के बाद में, अभी बची हुई जिंदगी अगर एक सुलझी हुई है, बैलेंस तरीके से जीनी है, तो उसके लिए दिया गया ये मेरा मंत्र है। तो दोस्तों मुझे बोलने का मौका दिया,
बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद हम लोग 10 बजे के आसपास है यहाँ पर। सो ओवर टू यू चंदू, एंड फॉर फर्दर डिस्कशन इफ एनीबडी वांट्स टू शेयर। थैंक यू भूषण। सबसे पहले अभी मुझे ये सीखने को मिला आज कुछ नया कि सेरेनिटी प्रेयर हमारे कौन से लिटरेचर में आता है। तो सेरेनिटी प्रेयर यहाँ पे आता है। दिस मे बी मिस्ड आउट, लेकिन रियली आज 8 सालों में ये काफी नया, समथिंग रियली ब्रांड न्यू थिंग आई गॉट टू नो। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। और दोस्तों, हमारे 12 कदम हो चुके हैं रीडिंग के। तो अगर कोई मेंबर शेयर करना चाह रहे हैं या सवाल पूछना चाह रहे हैं तो कृपया पूछिए। मिनट, वरना हम कुछ और शुरू करते हैं रीडिंग या वगैरह। जस्ट अनम्यूट कीजिए और पूछिए कोई भी सवाल इन 12 पायरों में। हेलो हेलो हाँ हाँ राहुल, यस हेलो। यस राहुल, पूछिए हाँ राहुल। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। शराबी हूँ। आज के दिन कोई नशा नहीं किया। तो एक सवाल था कि ये कार्यक्रम में बोलते हैं कि हमें संत नहीं बनना है, आध्यात्मिक प्रगति करना है, ऐसा बोल रहे हैं। और एक दूसरा सवाल है कि भाई ये कार्यक्रम स्वार्थी है, स्वार्थी तरीके से लेना चाहिए। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन था, ये थोड़ा आप क्लियर। हेलो हेलो, कुछ आवाज हो आ गया, ही मेरा नहीं सवाल राहुल हो गया। तुम्हारी। हाँ, राहुल का आवाज ब्लैंक हो गया था। आवाज नहीं, निकल गया तेरा। हेलो, मेरे को आ कुछ रहा है अभी आवाज? अब अभी आ रहा है, क्या अभी बोल रहे आवाज आ रहा है? अभी आ रहा है? हो? हाँ, यस। तो एक सवाल था कि भाई हमें आ, संत नहीं बनना है, आध्यात्मिक प्रगति करते रहना है कि करना है, ऐसा कुछ लिखा है। ये किस संदर्भ में है? और दूसरा है कि भाई ये कार्यक्रम स्वार्थी तरीके से लेना है, यानी स्वार्थी तरीके से कैसे लेना है, ऐसा मैंने सुना है थोड़ा फेलोशिप में। यस लकी। राहुल, प्रोग्राम को सेल्फिश लेने में बात ये आती है कि हम अपने ऊपर ध्यान दें। पहले हम अपनी रिकवरी पे, अपने स्पॉन्सर पे और अपने जो करने वाले काम है ना, उनके ऊपर ध्यान दें। उसके लिए प्रोग्राम को सेल्फिश करा जाता है। दूसरा, हम संत नहीं बनना चाहते हैं बल्कि आध्यात्मिक प्रगति की बात करते हैं। ये हमारा नेचर ऐसा है। हम अगर कुछ काम शुरू करेंगे तो हमने कभी प्रोसेस में आनंद नहीं लिया। हमको तो रिजल्ट ही नजर में था और वो रिजल्ट को पाने के लिए जो भी साम दाम दंड भेद लगेगा वो करने की कोशिश की। तो जब हम इस रास्ते की तरफ आते हैं ना, तो बिल की कई राइटिंग्स में वो हमको इशारे देता रहता है, क्योंकि बिल भी जिंदगी में कई बार उसके अनुभवों में भी वो भी बहकने की अवस्था में आ गया था। तो हमें वो रिकवरी में वो संत का लक्ष्य नहीं है। हम रिकवरी एबनॉर्मल से नॉर्मल हो रहे हैं। हम गिरे हुए लोग हैं, हम बहके हुए लोग हैं। हमारी रिकवरी हमको सामान्य बनाती है। हम सामान्य लोग नहीं है जो ये रिकवरी का प्रोग्राम को प्रैक्टिस करते करते महान बन जाए, क्योंकि संतों की बात महानता की बात आ जाती है। जबकि 12वां कदम हमें पूरे एक उपयोगी जीवन, इसमें जो लाइन थी, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू फाइंड पर्पस इन लाइफ। मेरे जीवन का ध्येय क्या है? मेरे जीवन का ध्येय है कि जीवन में ध्येय पाना। तो ये जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी मुझे सजग रखता है प्रेजेंट के अंदर, नाव में, इन द प्रेजेंट। न कि मैं, क्योंकि तकलीफ ये है ना मेरी कि मैं मुखौटे बहुत जल्दी पहन लेता हूं। मैं जो नहीं हूं मैं दिखावा बहुत जल्दी कर लेता हूं, वो स्वभाव है मेरा।
ये 11 कदमों की वजह से मैंने अपनी उस पुरानी पर्सनालिटी को तोड़ा है, जो श्रेष्ठ बनना चाहती थी, जो अलग दिखना चाहती थी। अगर मैं दुखी हूं तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे से बड़ा दुखी कोई नहीं। अगर मैं सुखी हूं या कोई कार्य अच्छा कर रहा हूं तो उसकी डींगे हाँकना मुझे बहुत ही अच्छी तरह से आता है। तो इसके लिए बिल हमारी नजर हमेशा प्रोसेस पे लाता है। तो संत बनने का ख्याल होता है तो कई लोगों को हमने ए में मसीहा इंस्टिंक्ट आते हुए देखा है। सोब्राइटी मिल जाती है और सोब्राइटी मिलने के बाद 440 स्पॉन्सर हो जाते हैं, स्पॉन्सी हो जाते हैं, लोग पीछे पीछे लगने लग पड़ते हैं और फिर उस बात का मेरे जैसे व्यक्ति को ईगो शुरू हो जाता है। फिर तो मैं शायद स्पॉन्सी के सर पे हाथ रख के उसका बुखार निकालने की भी सोच लूं। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोग मेरी बात सुन रहे हैं यार, विश्वास कर रहे हैं मेरे पे। और ये लोगों का विश्वास हजम करना, इसके लिए तो आध्यात्मिक पात्रता और नम्रता कितनी लगेगी कि जो कुछ है सो तेरा हमेशा मन में आना चाहिए। लेकिन जब ये नए नए में आने लग पड़ता है तो हम नहीं क्या काउंसिलर बन जाते, हम डॉक्टर बन जाते हैं, हम मसीहा बन जाते हैं। थोड़ी बहुत मात्रा में हम सब में वो छटाएं हैं। और मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि रिकवरी के रास्ते पे हमने कभी ऐसा नहीं किया, मैंने भी ऐसा किया। लेकिन जब हम अपनी सीमा समझ लेते हैं कि मैं मैरिज काउंसलर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई रिहैब काउंसलर नहीं हूँ, मैं मसीहा नहीं हूँ, मैं भगवान को विशेष पहचानने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, तो ऐसी चीजें नम्रता से आती है। और अगर मैं संत बनने का मेरे अंदर वो आ जाए तो फिर तो मैं चेले बनाऊंगा ना दोस्त। फिर मैं स्पॉन्सी थोड़ी बनाऊंगा, फिर मैं प्रोग्राम थोड़ी दूंगा जो ए का प्रोग्राम है। फिर तो मैं मेरे को जो प्रोग्राम पता है वो देने की कोशिश करूंगा। और अगर हम देखेंगे तो हमने कई ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो बहक गए हैं, जो संत बनने का, जिनमें पता नहीं किसी न किसी प्रकार से मन में ये भाव बैठ गया है कि अब मैं जो करूंगा वो ठीक है, वो सही है और वो सत्य है। तो बिल हमें बताता रहता है कि हम नश्वर इंसान हैं, हमारे से गलतियां होंगी। हम अपने मूड स्विंग्स के बीच में बैलेंस बना के जीने की कोशिश करते हैं और ये 11 कदम मेरे उस बैलेंस को बरकरार रखने में रोज का रोज मदद करते हैं। मेरा बैलेंस निर्भर करता है मेरे मन की आध्यात्मिक अवस्था में। इसके लिए सेल्फिश, पहले खुद को ठीक करो, पहले खुद पे ध्यान दो। और उसका एक महत्वपूर्ण रीजन ये है कि अगर अपना प्रोग्राम अट्रैक्शन का है ना, सामने वाला व्यक्ति वो मेरा पैसा गाड़ी बंगला देख के ये में नहीं आता है। वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मेरी समझ, मेरे उसके प्रति की समझ, सहानुभूति और उसके की तैयारी, ये उसे अट्रैक्ट करती है। हम क्या किसी को डरा धमका के थोड़ी ये में ला सकते हैं, हम तो अट्रैक्ट करते हैं ना। तो अट्रैक्शन का बेस नम्रता के सिवा कुछ नहीं हो सकता। मेरे अंदर वो नम्रता, पेशेंस, वो जो गुण है, टॉलरेंस, ये गुण उस नए व्यक्ति को अट्रैक्ट करते हैं। और इसी तरह ये पूरा साइकिल चलता है। लंबा हो गया उत्तर, लेकिन ऐसा ही साइकिल चलता है, पूषण कुछ करे तो। जो सेल्फिश प्रोग्राम के बारे में जो बात की गई है वो लार्जली अबाउट कैसा है कि मेरा जो इनिशियल स्पॉन्सर हमेशा बोलता था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सभी कैरेक्टर डिफेक्ट से भरे हुए लोग ही आते हैं और अगर मैं इट्स अप टू मी क्या हर एक में से अच्छाई लेनी है या बुराई लेनी है। तो हर व्यक्ति जो आके शेयर करता है उसने जो अपनी जिंदगी की वाट लगाई है, इंस्टिंक्ट्स के कैसा वो गुलामी के चक्कर में उसने क्या क्या किया है, तो मुझे लेना है मेरे मेरे फायदे की जो चीजें हैं वो मुझे लेनी है। मुझे वो हर अनुभव में से मुझे उतना गिरना नहीं है, तो मुझे अपने आप को सुधारना है। हर एक के शेयरिंग में से
मेरे मतलब की चीज क्या है, मेरे भलाई की चीज क्या है, मेरी रिकवरी की क्या स्टेट है और यहाँ का नेक्स्ट मेरा टप्पा क्या है, उस हिसाब से लेना है। ये एक भाग। और दूसरा भाग जो वो कहता है कि जब भी मैं संदेश देने के लिए जाता हूँ, किसी को मदद करने के लिए जाता हूँ, तो वहां पर वो ठीक होगा या नहीं, मैं कोई समाज सुधारक करके या अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम बेचने के लिए या समझाने के लिए नहीं जाता हूँ। मैं जाता हूँ और मैं जो उसको संदेश देता हूँ, उसके वजह से मुझे अपनी असलियत याद आती है, अपने आप को सतर्क रखने में मदद होती है, और उस वजह से मैं सोबर रहता हूँ। मेरे संदेश वहन के वजह से कितने लोग सोबर हुए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि कितनी दफा मैंने संदेश वहन किया, उसके वजह से मेरी सोबरिटी की क्वालिटी कैसे इंप्रूव हुई है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों तरीके से ये इफेक्ट लिया जाता है कि ये कार्यक्रम सेल्फिश है, यानी अपने हित का जो है वो मुझे लेना है। बाकी दुनिया का क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, कौन कितनी बार रिलैप्स कर रहा है, क्या पी रहा है या क्या नहीं, दैट्स नॉट माय लुकआउट। मुझे अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए इस कार्यक्रम का इस्तेमाल करना है। रही बात संत महात्मा की, तो लकी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। वैसे ही बिल डब्ल्यू पिछले हमारे कदमों में बोलता है कि इंस्टिंक्ट्स आर गॉड गिवन बट द ईगो जस्टिफाइज एक्सेसेस। हमारा जो ईगो है वो एक्सेस को जस्टिफाई करता है, यानी सेक्स इंस्टिंक्ट ने ये भगवान ने दी हुई है प्रजनन के लिए, लेकिन हर औरत मुझे जब अपनी लगने लगती है, तो और अगर मेरे को थोड़ा सा रूप है, थोड़ा सा बोलने की कला है, और मैं लड़कियों को आकर्षित कर सकता हूं, तो मैं जो करता हूं वो अब्यूज करता हूं। तो इंस्टिंक्ट थी वो प्योर मोटिव से थी, लेकिन मैं जो कर रहा हूं वो एक्सेस कर रहा हूं, वो मेरे ईगो ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहा हूं। तो ये जो ईगो है ये 100% मेरे अंदर से कभी भी निकलेगा नहीं। एक कितने भी साल हो जाए, अगर आप शेयरिंग के लिए खड़े हो जाओ और आपने शेयरिंग कर लिया और एक ने भी ताली नहीं बजाया, तो क्या आपको ठीक लगेगा? या अगर कोई बाद में आकर बोलता है अरे भूषण भाई बहुत अच्छा शेयरिंग लगा, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगता है? थोड़ा सा अप्रिसिएशन, थोड़ा सा एनकरेजमेंट। अगर बिल डब्ल्यू को भी ये सवाल पूछा गया था, बिल डब्ल्यू कहता है कि इफ इट वाज अगर बट फॉर अगर यानी मुझे अगर थोड़ा सा अप्रिसिएशन और प्यार सदस्यों से नहीं मिलता, तो सिर्फ आध्यात्मिक कारणों की वजह से मैं इतना सारा चीज कर सकता था, ऐसे मुझे नहीं लगता। सो इवन फॉर एनकरेजमेंट वी रिक्वायर अप्रिसिएशन। अगर कोई सामने ग्रुप का सेक्रेटरी करके बैठता है और हम लोग तालियों से उसका स्वागत करते हैं, तो उसको अप्रिसिएशन मिलता है। बाकी पैसा तो मिलना नहीं है, बाकी प्रतिष्ठा तो मिलना नहीं है, उल्टे गाली खानी है, लेकिन कम से कम 4 तालियां बजा के उसको अप्रिशिएट करके उसको हम लोग 100% ईगो डिफ्लेशन ये कभी हो नहीं सकता। इसके लिए बिल डब्ल्यू कहता है कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हमारी हो सकती है और हम लोग जाएंगे टूवर्ड्स परफेक्शन। जितना हो सके उतना हम लोग अपने आप को पवित्र या पूरी तरह से डिफेक्ट्स के हीन बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन शायद हम कभी वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो जो परफेक्शन है, वो परफेक्शन इज लाइक इंफिनिटी। कभी आप उस पॉइंट तक पहुंच नहीं पाते हो, आप कितना भी आगे निकल जाओ। सो इसके लिए कोशिश हमेशा लगातार रहनी चाहिए, क्योंकि मैं कल या आज मैं बहुत आध्यात्मिक फील कर रहा होगा, लेकिन कल सुबह किसी रिक्शा वाले से मेरा झगड़ा हो जाएगा, या गाड़ी चलाते समय कोई मुझे कट मार के जाएगा और मैं उसको गाली दे दूंगा, या कुछ ही ना कुछ मेरे हाथ से ऐसे होते रहेगा। बिकॉज सिचुएशंस, जब लाइफ इज हैपनिंग टू यू कंटिन्यूअसली एवरी मिनट, कुछ ना कुछ जिंदगी में चलते रहता है, फ्रिक्शंस होते रहती है, लोगों के साथ में संबंध बनते रहते हैं, और तभी तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स ओवरड्राइव में रहती है। तुम्हारा कॉन्शियस कितना भी जागृत रहे, तो भी 2 मिनट के लिए क्यों ना हो, 2 सेकंड के लिए क्यों ना हो, आपकी इंस्टिंक्ट्स आपको ओवर पावर कर जाती है।
सो ये दोनों हेतु बिल डब्ल्यू कहता है कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बट नॉट परफेक्शन। थैंक यू भूषण। अगला सवाल वैभव बहुत जे बढ़िया, ने बहुत हाथ बढ़िया, उठाया है। देख वैभव, राहुल ने अप्रिशिएट कर दिया। करना ओके। पड़ेगा। नहीं, अच्छा लगा, सही में अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नहीं, और 2 हफ्ते बाद फिर से राहुल फिर से ये सवाल पूछ सकते हैं फिर से, बट वैभव। जी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव जे, एक शराबी हूँ। मेरी सोब्राइटी कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1.5 साल होने के आसपास है, लेकिन मैं बहुत मन से ये सब सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, और एक स्टूडेंट के हिसाब से बड़े शिद्दत से ये प्रोग्राम लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल था भूषण जी और हमारे लकी भाई दोनों से, जो भी जिसे अच्छा लगेगा वो दीजिए। सेकंड स्टेप के बारे में थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। कई बार मैं विजिल मन से बहुत जितना हो सके मैं विजिल या कन्वेंशन में जाता हूँ, सुनता हूँ। कई बार कई वक्ते रहते हैं, वो बोलते हैं कि ये मेरी उच्च शक्ति है, और मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि सेकंड स्टेप में क्या कहा है कि ओनली पावर हायर देन अस कैन ग्रांट अस सैनिटी। सिर्फ सोब्राइटी ऐसा नहीं बोला है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ठीक है, दारू से दूर रहने के लिए ठीक है, अल्कोहल एनोनिमस ही मेरी हायर पावर है, ऐसे कई लोग बोलते हैं। तो ठीक है, दारू से दूर रहने तक की बात वो थोड़ी समझ में आती है। लेकिन जो हम 12 स्टेप में अभी बात कर रहे थे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, तो उसके लिए सब जो हमारे दोष है, चरित्र दोष जिसे हम कहते हैं, वो दूर करने के लिए सिर्फ अल्कोहल एनोनिमस हायर पावर हो सकती है क्या? आपने ऐसे कोई उदाहरण देखे कि कोई व्यक्ति अल्कोहल एनोनिमस को अपनी हायर पावर मानता है और उसकी वजह से उसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ है, अवेकनिंग हुआ है? सिर्फ सोब्राइटी की बात नहीं कर रहा है, सोब्राइटी तो ठीक है, ए से सोब्राइटी मिल सकती है, लेकिन जिसे हम बोलते हैं कि टोटल साइकिक चेंज, स्पिरिचुअल गेन, वो अल्कोहल एनिमस से हो सकता है क्या? क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि यही मेरी हायर पावर है। तो ऐसा कुछ ओके, आपने देखा है? वैभव वैभव, आपको सबसे पहले एक बात पे मैं टोकूंगा। आपने बोला आपकी सोबराइटी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1.5 साल की है। जहां तक मैं समझता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक दिन की सोबराइटी के लिए मुझे 5 या 6 साल लग गए। एक दिन की सोबराइटी, यू नो, इन आउट करते करते, और मैं सिर्फ एक दिन मेरे लिए बहुत बड़ा बात था। 1.5 साल बहुत बड़ी सोबराइटी है आपकी, तो ऐसा मत सोचिए। ओवर टू यू लकी जी, पूछिए। ओके, आई विल गो फर्स्ट। वैभव, अगर हम अपने पूरे प्रोग्राम को देखें तो पहले 3 कदम ये एडमिशन के हैं, एक्सेप्टेंस के हैं। जो प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज और आध्यात्मिक प्रगति की बात करते हैं ना, आप आगे आती है। सबसे पहले जरूरी है शराब बंद करने के लिए मुझे हार को स्वीकारना, और मुझे ऐसी मदद ढूंढना जो मुझसे और मेरी शराब से ज्यादा ताकतवर हो। Came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity। यानी कि शराब के प्रति मेरा जो अविवेकी प्रेम हुआ है, मेरा जो पागलपन है, वो पागलपन को ठंडा करने की जरूरत है, सामान्य करने की जरूरत है। और ऐसे में मैंने खुद ने जब शुरुआती दौर में अल्कोहलिक्स अनोनिमस को ही पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ माना हुआ है। मेरा अनुभव ये है कि मेरे को ए के मेंबर्स जब भी कोई बात बोलते थे, मैंने टाली नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास था कि ये लोग शराब से दूर हैं, ये मेरे से बड़ी ताकत है इनके पास। मैं शराब से दूर नहीं रह पा रहा हूँ और ये लोग शराब से दूर हैं, तो ये इनके पास जो है मुझे चाहिए, तो इन्होंने जो किया वो मुझे करना पड़ेगा। तो उस समूह पे जो 2 प्रार्थनाओं के बीच अपने अनुभवों से एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप शेयर करता है, निस्वार्थ भाव से, बिना कोई भेदभाव किए, जिसका कोई मूल्य नहीं है, कोई फीस नहीं है, जिसका कोई कमर्शियल एंगल नहीं है, ऐसे में एक निस्वार्थ प्रेम करने वाली संगठन, ऐसे समूह को उच्च शक्ति मानना
ये बहुत स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है। और मेरा शुरुआत का साल तो लगभग मेरे एक एक ग्रुप में जो कोई बोलता था और उसमें मुझे समझ में आता था, मैं उसको फॉलो करने की 100% कोशिश करता था। तो यस, पहला पार्ट, क्या ए का समूह आपकी उच्च शक्ति हो सकता है? यस। दूसरा सवाल, वो आध्यात्मिक प्रगति और वो प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज जो आगे की आप बात कर रहे हैं, पहले शराब को रुकाना जरूरी था। शराब को रुकाए रखने के लिए अगर मेरा किसी और ताकत के साथ विश्वास न जुड़े तो मेरा विश्वास फिर से शराब की तरफ चला जाएगा। तो दूसरा और तीसरा कदम वो महत्वपूर्ण टप्पे हैं जो मुझे वापस पीने को जाने से रोकते हैं, मदद करते हैं, रुके रहने में मदद करते हैं। फिर जो चेंज आता है वो चेंज तो एनालिसिस के बाद ही आएगा ना। जब मैं अपनी इन्वेंट्री लूंगा तभी मुझे समझेगा कि क्या चीजें रखने लायक है, क्या चीजें छोड़ने लायक है, किसमें कितना मेरा दोष था, मैं क्या समझ रहा था और एक्चुअली में क्या था। ये सारा विश्लेषण के बाद में टप्पा दर टप्पा जैसे मैं आगे बढ़ता हूं तो करने वाली चीजें करनी शुरू करता हूं और नहीं करने वाली चीजें नहीं करता हूं। ये दो प्रकार का जो मेरा अप्रोच है, गलती नहीं करना और जो करने वाले काम है वो करते रहना, ये दोनों अप्रोच कंसिस्टेंटली वक्त के साथ करते करते वो पुराना व्यक्तिमत्व छटपटाता है। क्योंकि पुराना व्यक्तिमत्व अपनी उपजत प्रवृत्तियों की मांग करता है। जैसे अभी पूषण कह रहा था, सेक्स की मांग आती है, जेलसी में सामान की मांग आती है, ग्रीड में चोरी की मांग आती है, शॉर्टकट की मांग आती है। ये सारी मांगे मैं पूरी नहीं करता हूं क्योंकि मुझे पता है ये नहीं करने वाले काम है और मुझे नहीं करने हैं। और उसके लिए मैं अपने स्पॉन्सर से लेके सारी चीजों की मदद लेता हूं। और वो मदद लेते लेते वो जिंदगी में वो ठहराव आ जाता है कि अब व्यक्ति बदल गया है। अब व्यक्ति बदल गया है तो व्यक्ति के ध्येय बदल गए, इसके लिए व्यक्ति बदल गया है। दिखने में तो वही है ना। तो जब ध्येय बदल जाते हैं तो हमारा 11वां कदम उन ध्येय की बात करता है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे ईश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है, मैं कैसे उसका काम कर सकता हूं। तो आप जब उस मन की अवस्था में आते हैं और उस तरफ चलने लग पड़ते हैं, तब मैं समझता हूं कि वो आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत हो जाती है। पहले तो आपने खुद को ही बचाया, करने वाले काम किए, नहीं करने वाले काम बंद किए। वो कोई आध्यात्मिक प्रगति थोड़ी है। आध्यात्मिक प्रगति तब होती है जब मेरा बिलीफ सिस्टम बदल जाए, मेरा वैल्यू सिस्टम बदल जाए, मेरे ध्येय बदल जाए। तो मेरे जो स्वार्थी ध्येय हैं फिर वो बदलने लग पड़ता हूं। फिर मैं एक ही सेवाओं में आऊं या अपने परिवार की सेवा में लगूं और वो जो भावनाओं के साथ में मैं काम करने लग पड़ता हूं, तो उस रास्ते को आध्यात्मिक प्रगति कहते हैं। थैंक यू। आपको सवाल का जवाब मिल गया है वैभव? हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ, लेकिन जैसे अभी लकी भाई ने बोला कि ठीक है, शराब छोड़ने तक मुझे लगता है कि ए हायर पावर ठीक है, लेकिन बाद में जो बोल रहे कि जैसे टोटल आध्यात्मिक चेंज, अगर मुझ में डिसऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी लाने के लिए मुझे कोई ऐसा उदाहरण सामने चाहिए। जैसे किसी परस्त्री के प्रति आकर्षण है तो भगवान राम को मैं आदर्श मानूंगा, हायर पावर मानूंगा, क्योंकि उन्होंने एक पतित्व का पालन किया था। तो वैसे कई, यानी मैं स्पेसिफिक किसी एक आदमी से नहीं कर रहा, लेकिन कई विजिट में मैंने सुना है कि मैं ए को मेरी हायर पावर मानता हूँ। तो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ए आपको दारू से दूर रखने तक ठीक है, लेकिन बाकी जो कैरेक्टर डिफेक्ट है उन्हें इम्प्रूव करने के लिए ऐसा हो सकता है क्या? आपने देखे ऐसे उदाहरण कि किसी ए को हायर पावर रखा और उसकी वजह से उसमें डिसऑनेस्टी थी, वो अच्छी हो गई, या कोई और समझा क्रुएल्टी थी,
मार झगड़े करते थे, लेकिन ए को हायर पावर मानने की वजह से उसमें कुछ सुधार आया। ऐसे कुछ उदाहरण थे क्या? मैं थोड़ा उसमें कंफ्यूज था। वैभव, ए का मतलब ए के तत्व, हाँ, ऐसे या मैं वो कंफ्यूजन में कि ए के व्यक्ति तत्व तो व्यक्ति ठीक की है। बात तो नहीं कर रहा ना? जब तू ए बोलता है तो कोई ए मेंबर की बात नहीं कर रहा ना? ऐसे कई विजिट में मैंने सुना है, और बड़े बड़े वक्ते कि वो बोलते, स्पीकर बोलते कि नहीं यही मेरी हायर पावर है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ए यानी वो व्यक्ति है या लिटरेचर है। लिटरेचर तो ठीक है, लेकिन ए के तत्व, थोड़ा कंफ्यूज। जब हम ए हाँ ये बोलते हैं ना, तो ए हाँ के तत्व बोलते हैं, ठीक है, यानी प्रिंसिपल, लिटरेचर तत्व, हाँ प्रिंसिपल। 36 तत्व। अभी पोषण थोड़ा खुलासा करेंगे इसका। सो हम लोगों को बिल डब्ल्यू कहता है हम लोग एग्नोस्टिक है। ओके, एथिस्ट कौन होता है? जिसको पूरा भरोसा है कि ईश्वर नहीं है। एग्नोस्टिक कौन होता है? जिसको संभ्रम है ईश्वर है या नहीं है। और बिलीवर कौन है? जिसको विश्वास है कि वो ईश्वर है। अब हमारा जो जर्नी है, ये एग्नोस्टिक जो हम लोग है, उसका मेन कारण क्या है? क्योंकि ईश्वर इस संकल्पना की सही समझ हमारे तक पहुंची नहीं, हमें वो सही समझ मिली नहीं। लेट अस से मेरे घर में शिव जी की पूजा हो रही थी। अब ये शिव जी की मूर्ति या वो शिवलिंग मैं देखता हूं, और उसमें मेरे माता पिता अपेक्षा करते हैं कि इसमें मुझे भगवान दिखाई दे। अब वो लिंग, शिवलिंग में मुझे पत्थर ही दिखाई देता है, मुझे कोई भगवान नहीं दिखाई देता। या अगर कोई फोटो दिखाई दिया मुझे कि यहाँ पर एक व्याघ्र वस्त्र पहना हुआ, पर्वत के ऊपर त्रिशूल लेकर, गले में सांप लेकर बैठा हुआ एक इंसान आंख बंद करके बैठा हुआ है, ये भगवान है करके बताया जाता है, तो मेरा लॉजिकल माइंड मुझे पूछता है कि किसने देखा है, किसने देखा है या ऐसा कोई व्यक्ति। और मेरा लॉजिकल माइंड मुझे ये बताता है कि भाई जहाँ पर कोई पर्वत, कैलाश पर्वत, जहाँ घास की पत्ती भी नहीं उगती है, वहां पर आदमी रहेगा कैसे, और पूरी फैमिली के साथ में? ये कुछ बिलीवेबल लगता नहीं है। तो ये सब जो है वो मेरे मन में डाउट क्रिएट करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और उसके वजह से मैं एग्नोस्टिक होता हूं। क्योंकि रिलीजन ने जो मुझे बताया वो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे सिर्फ लिमिटेड पर्सपेक्टिव था रिलीजन का। मैंने सिर्फ रिचुअल्स ही देखे, मैंने सिर्फ सिंबल्स ही देखी, और मैंने सिर्फ स्टोरीज ही पढ़ी। इसके वजह से मेरे मन में यह संदेह था कि यह है या नहीं है। इसीलिए जब भी मेरी शराब छूटने के लिए सवाल आया कि शिवजी की मदद मांग, तो शिवजी मुझे दिखेंगे कहाँ, मिलेंगे कहाँ, और वो मेरा क्यों सुनेंगे, इस प्रकार के विचारों से मुझे कभी इस बात की विश्वास नहीं हुआ कि शिवजी आके मेरी शराब छुड़ाएंगे। इज इट वर्थ इट? क्योंकि कई सारी मान्यता ये भी है कि शिवजी भी खुद गांजा, चरस या जो भी है, उसके शिव भक्त जो है वो सब गांजेड़ी और चरसी होते हैं। तो ये कैसा, मतलब ये कैसा भगवान? तो वो जो जिनको उनके पूजा करने वाले गंजेड़ी चरसी चलते हैं, तो मेरी शराब छुड़ाने के लिए क्यों आएंगे? इस प्रकार का कंफ्यूजन जो है, ये कंफ्यूजन हमारे मन में होता है क्योंकि हम रिलीजन की तरफ देखते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं देखते हैं। बिल डब्ल्यू ये अच्छी तरह से जानते थे कि हर रिलीजन की इंटरप्रिटेशंस में और रिचुअल्स में ही कंफ्यूजन है। इसके लिए वो बोलते हैं कि पहले तो उच्च शक्ति की संकल्पना को स्वीकार करते हैं। वो तुमको शिवजी करना है, गणेश जी करना है, विष्णु भगवान करना है, श्री राम करना है, या जीसस क्राइस्ट करना है, या अल्लाह करना है, वो बात अलग। पहले मैं नहीं सॉल्व कर सकता, मुझे कोई उच्च शक्ति चाहिए मेरी जिंदगी की तकलीफों को सॉल्व करने के लिए। यहां तक तो आते हैं
तो ठीक है यहाँ तक आते हैं, तो सब एथिस्ट भी बोलता है ठीक है चलो यहाँ तक आते हैं, एग्नोस्टिक भी बोलता है चलो यहाँ तक आते हैं, और बिलीवर बोलता है कोई दिक्कत है ही नहीं, मेरा तो विश्वास है ही, तो ये एडमिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब एक ग्राउंड पे आ गए। अभी आपका रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन कुछ भी हो, ओरिएंटेशन कुछ भी हो, कम से कम आप सब लोग एक बात पर आए कि मैं अपनी समस्याओं को हल नहीं कर सकता, मुझे किसी ना किसी की मदद लेनी होगी। फिर अगर आपने दूसरा कदम, ये यूट्यूब पे सभी हमारी ये शेयरिंग रिकॉर्डेड है, दूसरा कदम आप अगर सुनते हो तो फिर बिल्डब्ल्यू कहता है कि चलो शुरुआत में हम एए के तत्वों को ही मान के चलते हैं कि एए के मीटिंग में जाकर पीने की इच्छा नहीं होती है, एए के स्पॉन्सर से बात करके थोड़ा सा मेरा जिंदगी संवर जाता है, एए के तत्वों का पालन करके मेरे जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। तो अगर मैं इतने सारे लोगों का भला हो गया तो मेरा भी भला हो सकता है, इस विश्वास से क्या मैं एए को उच्च शक्ति मानने को तैयार हूं? टू स्टार्ट विथ, टू बिगिन विथ। तो हम सब बोलेंगे, एथिस्ट, एग्नोस्टिक, बिलीवर सब बोलेंगे ठीक है चलो भाई, ए ने लाखों की जान बचाई, मेरे भी शायद बचा देगा, मेरा विश्वास है। तो मैं अभी तीसरी में इच्छा और जीवन किसके हवाले करूं? अभी शिव जी तो दिखाई नहीं देते, समझ में नहीं आते, तो उनके सामने हवाले नहीं कर सकता, लेकिन मैं एए के मीटिंग और एए के कार्यक्रम के हवाले मेरी इच्छा और जीवन सौंप सकता हूं। अपना ईगो चलाने के बदले स्पॉन्सर की सुन के मैं अपना जीवन को सुधारने का प्रयास कर सकता हूं, और यहां से मैं चौथे कदम के लिए तैयार होता हूं। अपने जीवन का पूरा लेखा जोखा करके पांचवें कदम में स्पॉन्सर के साथ में मैं वो लेखा जोखा करता हूं, उससे मुझे मेरी मध्य से मुक्तता मिल जाती है। फिर छठे कदम में बिल डब्ल्यू बोलता है कि मध्य से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन बाकी जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, छोटी मोटी चीजें हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, इनमें से छुटकारा कैसे मिलेगा? तो जैसे मद्य के लिए स्टेप 1 में पावरलेस ओवर अल्कोहल बोला, उसी तरीके से अगर छठे कदम को तुमने सही ढंग से समझा तो नाउ आई एम पावरलेस ओवर माय सेक्स, नाउ आई एम पावरलेस ओवर माय गैम्बलिंग, नाउ आई एम पावरलेस ओवर माय स्मोकिंग, नाउ आई एम पावरलेस ओवर माय ग्रीड, नाउ आई एम पावरलेस ओवर माय लस्ट। ये सब चीज जो है, अगर हम बाकी सभी तत्वों को भी, बाकी जो हमारी तकलीफ है उनको भी छठे कदम में आप अगर इसी प्रकार से टैकल करो तो शराब जैसे आपकी छूट गई, उसी प्रकार से लस्ट से भी आपको छुटकारा मिलेगा, गुस्से से भी आपको छुटकारा मिलेगा। प्रक्रिया यही है, सरेंडर, accept help from another person and hand over your will and life to the care of that other person। तो ये अगर ए का तत्व ये है कि पहले तो अपनी गलती स्वीकार करो, दूसरे की मदद लो और उसमें से बाहर निकलो। ये करते 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 जब भी आप 7वें कदम तक पहुंचोगे कि अभी मुझे अपने अंदर की बुराइयों को निकालने का टेक्निक प्राप्त हुआ है, लेकिन खाली टेक्निक सफिशिएंट है क्या? तो टेक्निक सफिशिएंट नहीं है। तो 7वें कदम में दोबारा ईश्वर आता है और वहां पर वो कहता है कि अगर ये इसी अवस्था में बचाए रखना होगा और मेरे अंदर से परमानेंटली छुटकारा इनका लेना होगा, तो ये ईश्वर की कृपा से ही होगा। अब यहां पर वो जो ईश्वर की बात कर रहा है वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की नहीं, अभी यहां से आगे जो वो ईश्वर की बात कर रहा है कि यहां तक अगर आप पहुंचे हुए, छठवें कदम तक अगर आप पहुंचे हुए, तो आपको दो चीजों का पता चल चुका है कि आप ईश्वर नहीं हो, और ईश्वर ये कोई बड़ी शक्ति है, उच्च शक्ति है, वो कहीं भी हो सकती है। किसी को वो निसर्ग में दिखती होगी, किसी को सूरज में, किसी को हवा में, किसी को पानी में, किसी को तत्वों में दिखती होगी। तो वो जो भी उच्च शक्ति है, वो उच्च शक्ति की अभी साधना वहां पर आपको करके आप में से ये जो डिफेक्ट्स है ये परमानेंटली निकालने के लिए आपको अपील करना है, आपको प्रार्थना करनी है। अब सवाल ये आता है कि अगर मेरे में कोई भी ये सुधार हुआ है, बदलाव हुआ है, तो बदलाव किस वजह से हुआ है? तो कुछ तत्वों का पालन करने के वजह से मेरा ये बदलाव हुआ है। जैसे एए के पहली से लेके छठवीं कदम तक की मैंने तत्वों का पालन करते हुए
मैंने मेरा जीवन सुखकर बनाया हुआ है। तो ऐसे तत्व कहाँ कहाँ पर है? अगर मैं देखता हूं तो हर रिलीजन भी तत्वों पर ही आधारित होती है। उसका कुछ लोगों ने उसको एक्सप्लेन करने के हेतु कुछ कहानियां रची होगी। जैसे आपने सही ढंग से कहा कि एक पत्नी व्रत, या एक दफा मैंने प्रॉमिस दे दिया तो वो प्रॉमिस को मैं पूरा करूंगा, या समाज को मैं अपने घर या सुख से ज्यादा महत्वपूर्ण रखूंगा, या मेरे भाई के लिए मैं त्याग कर दूंगा, या मेरे पिता का वचन रखने के लिए मैं जंगल चला जाऊंगा। ये सभी तत्वों को दर्शित करने के लिए रामायण की रचना की गई। तो राम ये कोई व्यक्ति या ईश्वर करके बताया नहीं गया रामायण में भी। वहां पर भी यही बताया गया कि अच्छे से अच्छे आदमी के ऊपर भी बुरे प्रसंग आ सकते हैं, लेकिन अगर आप निष्ठा से तत्वों का पालन करते हो तो तत्वों का विजय अंत में होता है, और जो तत्वों के बगैर रहते हैं उनका पराभव होता है। दूसरे की बीवी लेके आओगे, कितने भी अमीर होगे, कितनी भी ताकत होगी, कितने भी आपके पास वर होगे, फिर भी वध तो तत्वों से के सामने आपको हारना ही होगा। ये जो तत्व है ये आपको रामायण से दिया, उसी प्रकार से महाभारत से, उसी प्रकार से बाइबल से, उसी प्रकार से हर रिलीजन का जो किताब है वो तत्वों से भरपूर है। और ये तत्व सामान्य व्यक्ति को आसानी से समझने के लिए उनको स्टोरीज में ढाला गया है, और स्टोरीज बताने के लिए अलग अलग कैरेक्टर्स को इस्तेमाल किया गया है। जैसे विष्णु पुराण, जैसे शिव पुराण, जैसे देवी पुराण, ये सभी जो पुराण आप जो देखते हो, ये पुराणों की रचना अगर आप थोड़ा सा गूगल में पीछे जाकर देखते हो तो 800, 900, 1000 साल पहले सिर्फ ये पुराणों की रचना हुई है। इनके पहले जब भी वेद काल था वो टाइम पे कोई ईश्वर ये सब थे नहीं। ये ईश्वर कहानियों के माध्यम से लोगों तक तत्व पहुंचाने के हेतु ये बनाए गए थे। तो फिर अगर मैं मूर्ति पूजा करके अगर मैं सोचूंगा कि मूर्ति मुझे बचाएगी, तो मूर्ति मुझे नहीं बचाएगी। अगर मैं बोलूंगा कि मैं दारू पीने जा रहा हूं, भगवान तू है तो आ और मुझे बचा, तो भगवान आके मुझे बचाने वाला नहीं है। भगवान मेरे सत्सत विवेक बुद्धि से ही काम करेगा। वो कैसे? तत्वों के आचरण से। हमेशा मैं ये सवाल पूछता हूं स्पॉन्सीज को कि जब भी आप बोलते हो कि तुम्हारा ईश्वर की संकल्पना क्या, अब कोई बोलता है कि मेरी ईश्वर की संकल्पना है श्री कृष्ण। ओके, चलो ठीक है। आपने गीता पढ़ी है? जी नहीं। अगर गीता पढ़ी नहीं है तो श्री कृष्ण के बारे में आप जानते क्या हो? उसका बर्थ हुआ, उसकी वो राधा गर्लफ्रेंड थी, उसकी ये बीवी थी, उसने पांडवों की मदद की और उसने जीत लिया, इतना जानते हो। और इसके ऊपर श्री कृष्ण आपका भगवान, तो आप किसके, आप वो श्री कृष्ण ये कैरेक्टर के प्रेम में हो कि उसके तत्वों के? अगर उसके तत्वों के प्रेम में हो तो गीता मालूम होनी चाहिए आपको, क्योंकि गीता जो है वो उसके तत्व है। श्री कृष्ण का प्रतीक है गीता। तो अगर गीता पढ़ी नहीं है तो श्री कृष्ण की इमेज को अगर आप पकड़ के चल रहे हो तो वो थोड़ी आपकी सहायता करने वाला है, वो थोड़ी आपके जीवन के परिवर्तन करने में मदद करने वाला है। गीता पढ़ोगे, गीता का सार समझोगे, गीता को अपने जीवन में उतारोगे तो बदलाव होगा। तो हमेशा हर रिलीजन तत्वों के सहारे ही आपके अंदर बदलाव लेके आता है। कोई एक इमेज, कोई एक चित्र, ये आपके लिए ईश्वर की संकल्पना करके चलोगे तो आप गलत ट्रैक पर चले जाओगे। ये बिल डब्ल्यू भी यही बताने का प्रयास करता है कि आप तत्वों का हार, कोई भी रिलीजन आप फॉलो करो, जो भी आपको पसंद हो वो देखिए, लेकिन उसके जो तत्व है वो तत्वों को समझिए और मेडिटेशन करिए। वो हमेशा बोलता है कि प्रार्थना और ध्यान, मेडिटेट करिए, अपने आप को शांत करिए और ये तत्वों के ऊपर विचार करिए और वो तत्वों को ग्रहण करिए और आपको ये सभी प्राप्त होगा। ये जो स्थिर चित्तता, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज, ये सभी प्राप्त होगा, वो तत्वों के आधार पे होगा। तो मैंने आपको सामने रखने का प्रयास किया, रिलीजन अलग है, रिलीजन के अंदर के तत्व अलग है, और ये सभी तत्व जो होते हैं
ये आध्यात्मिकता के होते हैं, स्पिरिचुअलिटी के होते हैं। सो इसके लिए बिल डब्ल्यू हमेशा स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, तत्वों की बात करता है, रिलीजियस एंटिटीज या रिलीजियस प्रोसीजर्स या रिलीजियस रिचुअल्स की बात नहीं करता। सो अगर आपको सही मायने में ईश्वर के करीब जाना है, तो सपोज आपको जो भी संत आपको पसंद है, वो संत कई सारे हैं। स्वामी समर्थ का मैं भक्त हूं, ओके, स्वामी समर्थ ने कौन सी किताब लिखी और उसमें क्या लिखा है बताइए। अच्छा, आप दत्त के भक्त हो, ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा है? दत्त का पारायण कौन सा ग्रंथ पढ़ा है? कौन से तत्व आपने समझे हुए हैं और उनका आचरण आपने अपने जीवन में किए हुए, वो बताइए, तो मैं बता सकता हूं कि आपको जीवन में परिवर्तन हुआ है या नहीं। खाली एक इमेज, 3 हेडेड इमेज गाय के साथ में खड़ी है और वो इमेज पसंद आ गई और इसीलिए ये मेरा भगवान अगर मान के चलोगी तो वो अंधश्रद्धा होगी। लेकिन वो जो तत्व बताने का प्रयास कर रहा है रिलीजन, आपको उसके पीछे का जो उसका वांग्मय है, उसका जो व्याकरण है, उसका जो ग्रंथ है, वो जो अगर आप पढ़ने का तो आप में दत्त की प्रतिकृति बनेगी, आपके अंदर राम जन्म लेंगे, आपके अंदर बिल डब्ल्यू पैदा होगा, आपके अंदर शिव जी दर्शन देंगे, आपके विचारों में वो सब बदलाव आपको दिखाई देंगे अगर आप शिव पुराण पढ़ रहे हो तो। सो चित्र पे मत जाओ, वो तत्व को फॉलो करो, एंड दैट इज द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैंडिंग ओवर योर विल एंड लाइफ to the care of God as you understand Him. You need to understand Him. You don't need to just see Him and like Him. You need to understand what that God represents to you. समझ में आया भाई साहब कि जरा ज्यादा बोल गया? थैंक यू भूषण। चित्र पे मत जाओ, चरित्र पे जाओ। लेकिन भूषण, मेरा चित्र एक डाउट है, जाओ, चरित्र पे जाओ। नहीं, तत्व का इंग्लिश में बेस्ट वर्ड कौन सा है? मतलब व्हाट डू यू, प्रिंसिपल्स? यस, तत्व का मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स, ओके। आई गेस मीटिंग का समय हो चुका है। मैं आप सभी भाइयों का धन्यवाद। और जैसा कि हमने एक पोलिंग किया था हमारी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो करीब 100 वोट्स आए हैं, और उसमें से करीब 90 लोग कह रहे हैं कि हमें कंटिन्यू करना चाहिए 12 ट्रेडिशंस पे। तो आपका क्या कहना है भूषण और लकी जी? बिल्कुल, अगर 90 लोगों का कहना है ट्रेडिशंस कंटिन्यू करें, तो हम लोग ट्रेडिशंस कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते से। कुछ लोगों की ये भी रिक्वेस्ट थी कि टाइम 9 बजे के बदले अगर 9:30 किया जा सके, क्योंकि कई सारे लोग मीटिंग में होते हैं, वहां से घर में नहीं पहुंच पाते हैं या वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ लोगों का फीडबैक था। So maybe you can put another opinion poll about change of time if people are happy with 9 to 10:30 के 9:30 से 11 ये टाइम करना है। ये खाली आप एक दफा कंफर्म कर लो बिफोर वी स्टार्ट ट्रेडिशंस, और अगले शुक्रवार से हम लोग 12 ट्रेडिशन शुरुआत करते हैं। ओके, तो आई गेस समय हो चुका है। कुछ हैंड्स रेस थे, फॉर एग्जांपल स्मृति और आनंद, बट इट्स ओके, मैं मीटिंग क्लोज करता हूँ। मीटिंग के बाद में हम कुछ है तो डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हम अगले हफ्ते मिलते हैं इसी समय पे। रिवाइवल ग्रुप की ऑनलाइन ए मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे 12 ट्रेडिशंस अगले शुक्रवार को। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए, और हम सेरेनिटी प्रेयर लेते हैं इंग्लिश में वी वर्जन पे। गॉड grant us the serenity to accept the things we cannot change, courage to change the things we can, and wisdom and the wisdom to know the difference. थैंक यू लकी भाई, पूछन भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत ही भयंकर था और बहुत ही एकदम रिफ्रेशिंग था आज का रियली शेयरिंग। मैं मीटिंग 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद करना है।